A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number 3 of your book Indian Constitution at Work. And the name of your chapter is Election and Representation. In our earlier classes, we have discussed about uh, elections and democracy, how elections hold in a democratic country, and how elections can also hold in non-democratic countries. Okay? And for this, like some rules and regulations are there, where all the things, all the rules related to elections are there, like in our constitution, in any country's constitution, like who are eligible to contest the elections, who will supervise the elections, how do the voters choose their representatives, and how are the votes to be counted and representatives elected. Okay, so these are this was the first topic of your chapter election and representation under the topic election and democracy. After that, we talked about election systems in India, like what type of election system we follow in India. Okay, we talked about it, and under that we have done our first type of election system, that is first past the post system. Okay, first past the post system, we have borrowed this provision from the British Constitution. We have borrowed this electoral system from the British Constitution, and under this, what happened in first past the post system, voters cast their votes for a candidate of their choice, and the candidate receives the most votes win. Okay, and we have also discussed the example of India's Lok Sabha election of 1984, where the total percentage of votes Congress got was 48%, but still Congress got seats more than 80%. So basically, from 543 seats, Congress got 415 seats of Lok Sabha, and that number is more than 80%. More than 80%. Instead, Congress only got 48%. Okay. So now our next type of electoral system is proportional representation. Now, what is this proportional representation? We will understand this concept with the help of example. We will take the example of Israel, how elections take place in Israel. That follows a very different system of election in Israel, in Netherlands, Portugal. Okay, these are like some of the countries where this PR system is followed. Electoral system of PR proportional representation is followed. In proportional representation, what happens? It is a type of voting system used for elections in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast of them. अब proportional representation में क्या होता है? पार्टीज को जितना परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला है ना, उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है पार्टी को मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक ठीक है, यहाँ पे है एक पार्टी को कितना मिल रहा है, एक पार्टी को डिवाइड कर दिया डिफरेंट हमने पार्टीज में. ठीक है, अब पार्टी ए को कितना मिल रहा है? पार्टी ए को मिल रहा है 30%. ठीक है, पार्टी बी को मिल रहा है 15%, पार्टी सी को मिल रहा है अगेन 28%. ठीक है, ऐसे करके पार्टी डी और पार्टी ई को भी मिल रहा है. तो यहाँ पे अगर ए पार्टी को 30% वोट मिला है ना, तो क्या होगा? इसकी जो इलेक्शन में जो वोट सीट्स होती है, 30% सीट्स पार्टी ए के लिए कंफर्म हो जाती है. यहाँ पे पार्टी ए को 30% सीट्स, टोटल सीट्स में से 30% सीट्स तो उन्हें मिलेगी ही मिलेगी. सेम विद पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी. जितना प्रपोर्शन ऑफ सीट्स, जितना प्रपोर्शन ऑफ वोट्स उनको मिला है, उतना प्रपोर्शन ऑफ सीट्स उन्हें मिल जाता है. So each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election. अब इलेक्शन से पहले क्या करते हैं? हर एक पार्टी जो है
ठीक है, अपनी अपनी लिस्ट निकालती है कि ये कैंडिडेट्स होंगे हमारे पार्टी से। तो यहाँ पे क्या होता है मेन, यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम में हम किसके लिए वोट करते हैं, हम वोट करते हैं पार्टी कैंडिडेट के लिए कि कौन सा कैंडिडेट है और उसके अकॉर्डिंग हम वोट करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ choosing candidate in proportional representation, what we are doing, we are choosing the party। ठीक है, हम यहाँ पे पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, ना कि कैंडिडेट के लिए। और इलेक्शन से पहले रिस्पेक्टिव पार्टी क्या करती है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि पार्टी ए में से ये पार्टी ए है तो पार्टी ए में से कौन कौन से नॉमिनीज होंगे, ये वाले नॉमिनीज होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 7-8 जो है जितने भी नंबर ऑफ लिस्ट उनको देनी है वो नंबर ऑफ लिस्ट दे देते हैं और बताते हैं अगर आप इस पार्टी को वोट कर रहे हो तो इनमें से कोई भी आपका क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। ओके, एंड दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट वी आर डूइंग हियर, मतलब जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को, सॉरी नॉट कैंडिडेट, जिस पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिल रहे हैं उतनी प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स उनके लिए क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि उतना प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स तो आपको मिलेगा ही। ओके, सो नाउ वी हैव 2 वेरिएशंस इन दिस पीआर सिस्टम। 2 वेरिएशंस हैं, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड्स। इफ वी टॉक अबाउट इजराइल एंड नीदरलैंड्स, व्हाट हैपेंड हियर, the entire country is treated as one constituency। constituency चुनाव क्षेत्र होता है, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वोटिंग होती है। हर 28 स्टेट्स मतलब 28 कॉन्स्टिट्युएंसीज। ठीक है, तो अब उस 28 में भी क्या है, डिविजन्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, डिविजन कर दिया है। तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्युएंसी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहां से जो इलेक्शंस हैं हेल्ड होंगे और वहां से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट चूज किया जाएगा। ठीक है, बट इजराइल और नीदरलैंड दे फॉलो दिस पीआर सिस्टम। एंड यहाँ पे क्या होता है, इजराइल और नीदरलैंड में एक पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्युएंसी एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्युएंसी ट्रीट किया जाता है, एंड सीट्स आर अलॉटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर्स ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शंस। Again, I already gave you, I already told you what happened before election. They declare the list of the nominees. What they are doing, they declare the list of nominees. If you vote for party A, these are the names of the candidates who will hold the seats, right? तो अब क्या कर दिया, एक कॉन्स्टिट्युएंसी की तरह यहाँ पे इजराइल को माना जा रहा है, नीदरलैंड्स को माना जा रहा है, और सीट्स अगर पार्टी ए ने 40% सीट्स उनके पास आई हैं तो 40% सीट्स में से जितने भी 40% सीट्स जो हैं पार्टी ए को मिल जाएगी। 50% सीट पार्टी बी को मिली और 10% सीट दूसरी पार्टी को मिली है। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन दे विल गेट द सीट्स। ओके, यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम के जैसे नहीं होता है। एफपीटीपी में जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स है उनके पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी सीट्स चली जाती है। बट इन पीआर सिस्टम this like seats are allotted according to the proportion of, ये first variation है। Now second variation क्या है, when the country is divided into several multi-member constituencies, and examples are Argentina and Portugal। Argentina और Portugal, ठीक है, अर्जेंटीना की साउथ अमेरिका की कंट्री है, पोर्टुगल स्पेन के पास यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है पोर्टुगल। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक कंट्री को, एंटायर कंट्री को, दे डिवाइडेड द एंटायर कंट्री इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्युएंसीज एंड ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्युएंसी। फॉर एग्जाम्पल there are overall there are 4 parties in Argentina। Okay, so now what happened, each party declares or you can say prepares a list of candidates for each constituency. For example, this is the constituency A, constituency B, constituency C, and constituency D. Okay, now each party, okay, 1, 2, 3, 4. These are the 4 names of the parties, 1, 2, 3, 4. Okay, and each party, all these 1, 2, 3, and 4 party prepares a list of
what they are doing, prepares a list of candidates for constituency A. They all part 1, 2, 3, 4, party 1, party 2, party 3, party 4. They prepare a list of candidates. They prepare a list of candidates. Party 3 is also preparing a list of candidates. Same with party 4, they prepares a list of candidates for each constituency. Okay, so in both these variation, voters exercises their preference for a party, not a candidate. This is the main thing here. Voters, what they are doing, they vote for the party, not for the candidate. But in FPTP system, voters vote for the candidate, not for the party. Okay. So the seats in a constituency are distributed on the basis of votes polled by a party. Thus, representatives from a constituency would and do belong to different parties. We will talk about India later on. Before that, we will talk about the proportional representation in Israel. This is the example. One of the example we will talk about regarding the proportional representation. Okay. So now proportional representation in Israel. Before that, thing is clear. What is proportional representation? Here, it is a type of voting system used for elections in which parties gain seats according to the proportion to the number of votes cast for them. जितना percentage of votes उनको मिला है उतना percentage of seats उनको मिलेगी. ये fix हो जाता है. ठीक है? And here party, two main things are there. जितना proportion of votes are there उतना proportion of seats parties को मिल जाती है. And second thing is voters vote for the party, not for the candidate. Okay, these are the two most important thing under PR system. So now look after the example of Israel, proportional representation in Israel. Israel follows the proportional representation system of elections. Elections to the legislature, Knesset. Now this is the name of you can say parliament. ठीक है? जैसे इंडिया में क्या है, संसद है और सॉरी लेजिस्लेचर. जैसे इंडिया में हम लेजिस्लेचर ही बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं. ठीक है? वैसे ही इजराइल में जो नेसेट लेजिस्लेचर के जो आपके इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेचर का नाम उन्होंने नेसेट दे रखा है. सो इलेक्शन स्पैन ऑफ टाइम पीरियड, स्पैन कितना है? 4 years का स्पैन है. इंडिया में है वी हैव 5 years. ठीक है? तो हर 5 years में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, बट इजराइल में कितने years में elections took place? Every 4 years. So every party declares a list of its candidate, but voters vote for the party and not for the candidate. A party gets seats in the legislature in proportion to the votes polled by it. I already told you these things. Ki voters vote for the party, not for the candidates, and party gets seats in the Knesset or legislature in proportions to the votes polled by it. जितना percentage of seats उनके पास है, उतना proportion of votes वो क्या करते हैं, उतनी proportion of votes, उतनी proportion of seats party को मिल जाती है, एक particular party को मिल जाती है. This allows even, this is the advantage. Underline this statement and if I ask you या फिर exam में कभी question पूछ लिया जाता है, what is the basic advantage of proportional representation? So the advantage is this allows even smaller parties with very small support base to get representation in legislature. Unlike FPTP system, in FPTP system, smaller parties, those parties who didn't get much votes या फिर जो हार जाती है या उनको वोट्स नहीं मिलते हैं, तो उन्हें सीट्स भी नहीं मिलती है. जो अगर एक पार्टी को 30% मिला और दूसरी पार्टी को 31% मिला है, तो वो 31% वाली जो पार्टी है वो क्या हो जाएगी, वो जीत जाएगी, वो विन कर जाएगी. बट वो 30% वोटर्स, उनको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना. 30% जो सीट्स, जिस पार्टी को सीट्स मिला है. तो यहाँ पे पीआर सिस्टम में ये होता है कि स्मॉलर से स्मॉलर पार्टी भी क्या है, उनको सपोर्ट मिलता है विद वेरी स्मॉल सपोर्ट बेस टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, कि वो भी लेजिस्लेचर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑब्वियसली वन एक्सेप्शन इज देयर इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी. ठीक है? कि 3.25% वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर.
3.25% का होना बहुत जरूरी है। 3.25% हो सकता है आपके, इफ यू हैव गोल्ड बुक तो उसमें नंबर परसेंटेज 1.5% लिखा होगा, ठीक है, प्लीज चेंज इट। 3.25% वोट्स जो है टू बी एलिजिबल टू गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर, मिनिमम ऑफ 3.25 चाहिए इजराइल में। वैसे ही जर्मनी में जो है 5% चाहिए, और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स है। और ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, टोटल आपका जो है टोटल ओनली 50 सीट्स है, ठीक है। अब 50 सीट्स में से एक मिनिमम तो होना चाहिए ना कि कितना, इतना परसेंटेज है, 3.25 परसेंटेज है तो ठीक है, आपको कितना 2 सीट्स मिल जाएंगी 3.25% में। अब इससे भी कम होगा तो आपको सीट्स मिल ही नहीं पाएंगी ना, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा कि 0.75 सीट, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, so now there is a minimum eligibility, 3.25% votes to be eligible to get seats in the legislature, and this often leads to a multi-party coalition government. Sometimes what happen, coalition government की भी formation हो जाती है। coalition government, what is coalition government? You already um, know what is coalition government, अपने अगले क्लासेस में आपने पढ़ा भी है coalition government के बारे में। coalition government means when two or more smaller parties or two or more parties merge and make a majority, made a majority, ठीक है, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि 10 सीट्स 10 सीट्स का होना जरूरी है, बट एक कुछ पार्टीज को 5 मिला है, एक दो पार्टी को 3 मिले हैं, तो ये पार्टी क्या होता है, तीनों पार्टीज मिलके क्या कर लेती है, 10 सीट्स बना लेती है, तो इसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट। एंड ये बहुत बार देखने को भी मिलता है, दिस ऑफन लीड्स टू ए मल्टी पार्टी कोalition. So now there is the following table shows the result of the 2015 election to the Knesset. Based on this, you can find out the percentage of seats various parties got in the election. ठीक है, अब देखो, Likud, these are the names of the parties of Israel. Likud को total percentage जो votes है 23.40 है, number of seats जो हो गई है 30 है, percentage of seats आप निकालते रहना। Zionist camp को total number of votes 18.67 है, number of seats कितनी है, 24 मिली है। अब जॉइंट लिस्ट है, सो दिस इज हदाश, नेशनल डेमोक्रेटिक असेंबली, अरब मूवमेंट ऑफ रिन्यूअल, यूनाइटेड अरब लिस्ट, ठीक है। इनके टोटल नंबर ऑफ, एक जॉइंट लिस्ट आप बोल सकते हो या फिर एक बोल सकते हो कोalition गवर्नमेंट है कि स्मॉल जो है ऑर्गेनाइजेशन मिलके कितने वोट्स मिले, 10.61 मिले, उनको नंबर ऑफ सीट्स मिली है 13। तो ऐसे ही और भी दूसरे पार्टीज के नेम है, ठीक है। अब देखो अदर पार्टीज है, यहाँ पे अदर पार्टीज में यहाँ पे 4.51 आपका मेंशन किया गया है कि 4.51 परसेंटेज है, मतलब अदर पार्टीज में और भी छोटी छोटी पार्टीज है जिनको 3.25% से कम वोट मिले हैं। तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने कोalition गवर्नमेंट भी नहीं बनाई है और इनको क्या है 0%, 0 सीट्स ही मिली है, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इजराइल, हाउ proportional representation election system follow in Israel. Okay, so now we will talk about India. In our next class, we will go through like how PR system held in India with the help of an example. Okay, how does PR work in Rajya Sabha election? अब राज्यसभा इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और विधान परिषद, अब बाइकैमरलिज्म, यूनिकैमरलिज्म सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स में यूनिकैमरलिज्म फॉलो किया जाता है, कुछ स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म फॉलो किया जाता है। तो जहाँ बाइकैमरलिज्म फॉलो किया जाता है वहां पे विधान परिषद को भी इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। I will let you know about this in our next class when we discuss how does PR system work in India, ठीक है, उसमें बताऊंगी। So comparison, ठीक है, before that we will discuss comparison of FPTP and PR system of election. In FPTP system what happened, country is divided into small geographical units. country को क्या है, बहुत ही small geographical units में divide कर लेते हैं। इंडिया को नजर में रख लो, आपको पता चल जाएगा
इंडिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दैट हैपेंस इन एफपीडीपी सिस्टम. पीआर सिस्टम, large geographical areas are demarcated, means boundary या फिर bordered as constituencies. The entire country may be a single constituency. पूरी कंट्री को एक एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या किया जाता है, हम एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं और वोट करते हैं. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव. जैसे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी we choose one representative for each constituency. Okay, but what happens in PR system? More than one representatives may be elected from one constituencies. Voters vote for the party. हो सकता है एक ही constituency में एक से ज्यादा जो है representatives हो सकते हैं, ठीक है. For example, if we took the example of बीकानेर, for example बीकानेर में जो है PR system चल रहा है, ठीक है, और बीकानेर को क्या है कि बीकानेर में 4 पार्टीज हैं, तो हो सकता है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव हो अकॉर्डिंग टू द एरिया, कि इस एरिया में ये रिप्रेजेंटेटिव होगा क्योंकि क्या है इतने नंबर ऑफ वोट्स मिले और इतने नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंटेटिव होगा यहाँ का, ठीक है. तो हो सकता है पीआर सिस्टम में मोर देन वी कैन हैव मोर देन वन रिप्रेजेंट, वी मे हैव मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट एफपीडीपी सिस्टम में एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है. वोटर्स इन एफपीडीपी सिस्टम, वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट, बट वोटर्स किसके लिए वोट करते हैं? पीआर सिस्टम में पार्टी के लिए वोट करते हैं. अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. हो सकता है पार्टी, ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा था, ठीक है, 1974 का जो इलेक्शन था लोकसभा, उसमें सीट्स जो वोट्स थे 48% थे कांग्रेस के, बट सीट्स उनको 80% से ज्यादा मिल गई थी. तो पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर. But in PR system, every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets. अब इस PR सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर में अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स एवरी पार्टी गेट सीट्स. की अगर 30% आपको प्रपोर्शन में वोट्स मिले तो 30% सीट्स आपको लेजिस्लेचर में मिलेगा ही मिलेगा, राइट. Now, next is candidate who wins the election may not get majority, 50% plus 1 votes. अब हो सकता है कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन, ठीक है, उसको मेजोरिटी नहीं मिली होगी, बट इलेक्शंस में नॉट गेट मेजोरिटी, 50% प्लस 1 वोट्स. अब एक 50% प्लस 1 वोट का होना जरूरी है यहाँ पे, 50% प्लस 1, ठीक है, मेजोरिटी वोट्स होने चाहिए यहाँ पे, ना कि ऐसा होना चाहिए कि प्रपोर्शन के बेसिस पे नहीं होता है, यहाँ पे वोट्स के बेसिस पे होता है कि एटलीस्ट 50% प्लस 1. जैसे लोकसभा में आपको 272 सीट्स चाहिए होती है ना पार्टी बनाने के लिए, तो 272 को बनाने के, ऐसा नहीं है 270 वाला तो बन जाएगा, नहीं, यहाँ 272 चाहिए तो चाहिए, एंड मतलब उतना परसेंटेज ऑफ वोट्स आपको लाना पड़ेगा, उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स आपको 172 सीट्स चाहिए इंडिया में, तभी आपकी मेजोरिटी बनेगी. पीआर सिस्टम में क्या होता है, कैंडिडेट्स हु विंस द इलेक्शंस गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स. ऑब्वियसली 30%, एक को 30% मिला है, दूसरी पार्टी को 30% मिला है, थर्ड पार्टी को 40% मिला है, तो 40% वाला जो है वो मेजोरिटी में आ जाएगा, अपनी गवर्नमेंट भी बना लेगा. बट हर एक को क्या है, हर एक कैंडिडेट को वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो जितने ज्यादा वोट्स यहाँ पे मिलेंगे, who wins the elections get majority of votes. Next is एग्जाम्पल यूके, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जो है एफपीडीपी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. नीदरलैंड्स, Israel, Portugal, Argentina, these are like some of the examples of PR system. So this is the important box, ठीक है, difference between है. So go through this topic, both the topics, FPDP system and PR system. And if you get any problem, you may ask me in my next class. Thank you so much for joining the class, everybody. Take care of yourself. Bye-bye.